Hi, I will start today video lesson by a simple quiz. And this quiz is actually a multiple choice question. And the statement of the quiz is that which one the following statement is not true? And there are four possible statements regarding coordination and control in plant and animal, and you have to carefully study each of these statement and must you have to give a single answer, single option, that statement which is incorrect or not true regarding nervous or chemical coordination. Alpha statement is that nervous coordination is a slow process. Nervous coordination is a slow process. Beta statement is that chemical coordination is present in both plant and animals. And Charlie statement is that nervous coordination involve nerve impulse. And delta statement is that all statements are correct. So, firstly, I will have a look on the statement alpha. Nervous coordination is slow process. No, it is not a slow process because I'm just thinking about to just move these fingers, and I am thinking and action is there. So, nervous coordination is very fast process. With it take place within a nanosecond with a maximum speed of 120 meter per second. So, first statement is incorrect. As first statement is incorrect, it's mean that all statements are correct. This statement is itself wrong because alpha statement actually says that all statements are correct. This statement is incorrect. So we have the correct answer. Alpha, nervous coordination is a slow process. Let's have a statement B. Chemical coordination is present in both plant and animal. That is correct statement. Why it is correct? Because chemical coordination actually involve hormones, and hormonal coordination is present in both plant and animal. And nervous coordination involve nerve impulse. This statement is also true. Why it is true? Actually, because nervous coordination is because of neurons, and neurons actually transmit, communicate the message with the help of nerve impulse. सो यहां तक आपको ये समझ आ चुकी होगी कि जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड। और इस टॉपिक में जो चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। प्लांट भी ओपन होते हैं, सूरज के मुताबिक रिस्पांस देते हैं। जैसे ये फ्लावर ओपन हो रहे हैं, ये फ्लावर किसी रिस्पांस के नतीजे में ओपन हो रहे हैं, लाइट की मौजूदगी में ओपन हो रहे हैं। कभी लाइट की तरफ ये जा रहे हैं, लाइट की तरफ बेंड कर रहे हैं। इसके अलावा प्लांट में बहुत से रिस्पॉन्सेज होते हैं और इन तमाम रिस्पॉन्सेज का ताल्लुक प्लांट में कोऑर्डिनेशन से होता है। अब प्लांट में कोऑर्डिनेशन एनिमल की कोऑर्डिनेशन से कैसे डिफर करती है? हाउ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम coordination in animal. So firstly we have an introduction about the coordination in plants. Plants are passive. Why passive? Because they are not active just like animal. They can't move, they can't locomote, they can't change their position. So plants are usually passive. So whenever they are showing response or showing coordination, this response is not actually locomotion. They do not show locomotory response. So हम कह सकते हैं प्लांट पैसिव हैं, they can't move, they are complex but they are very complex dynamic organism that are in state of changing. They always actually in a state of changing. They change their body pattern, they change their growth. So हमेशा वो क्या कर रहे होते हैं, वो चेंज हो रहे होते हैं। दे ग्रो, वो हमेशा ग्रो करते हैं। छोटे से सीडलिंग से these plant are grown to large and huge trees. Similarly they change from one stage to next stage. They are actually changed from their embryonic stage to the adult stage. When they become adult, they change their actually whole reproductive physiology. Sometimes they produce flower, once a time they produce flower, then they undergo pollination, then they एक्चुअली फॉल डाउन देयर फ्लावर। और ये बहुत से काम जो एक्चुअली हो रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट हमेशा ग्रो करते हैं, चेंज करते हैं, रिएक्ट टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। समटाइम्स they move toward, some part of plant move toward light, some part of plant move away from light.
तो एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्डिंग टू सम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई एंड दे शो रिस्पॉन्स. So plants are actually passive, complex dynamic organism that grow, change, react or react to some stimuli and also show responses. But plant responses are quite different from animal responses. Reason? Because plant are passive, they cannot locomote. वो जो रिस्पांस शो करेंगे वो मूव करके, वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर रिस्पांस शो नहीं करेंगे. Behaviors of plant differ from animal. What does behavior means? Behavior is actually the change in response to our repeated stimuli. एक खास स्टिमुलाई के खिलाफ जो रिस्पांस होता है, जैसे आपने शेर को आप देख रहे हैं या शेर ने आपको देख लिया, तो शेर का जो बिहेवियर होगा वो बड़ा जोर से दहाड़ेगा, वो इस तरह से क्या करेगा, वो एक चीख मारेगा, आपको खाने के लिए लिपटेगा. लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करेंगे, उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होगा. तो बिहेवियर्स एक्चुअली प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल. रीजन क्या है? द डिफरेंस इज ड्यू टू सेसाइल नेचर. आपको वो शेर अटैक कर सकता है, वो मूव कर सकता है, लेकिन प्लांट सेसाइल है, वो मूव नहीं कर सकते, वो आपकी तरफ नहीं आ सकते. आप प्लांट को तंग करेंगे, उनके ऊपर जब प्लांट के ट्रीज के ऊपर वो लिख रहे होते हैं ना, आई लव यू जॉनी, आई लव यू, तो प्लांट के ऊपर अपना नंबर लिख रहे होते हैं, तो एक्चुअली उनको भी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो उस तरह से शेर की तरह आप पर थप्पड़ नहीं मार सकते, आपको वो आपको बाइट नहीं कर सकते, चूंकि वो पैसिव है, वो बोल नहीं सकते, तो उनके पास बहुत सी ऐसी जो सेंसेस मौजूद नहीं है. मच ऑफ द बिहेवियर ऑफ प्लांट. तो बिहेवियर ऑफ प्लांट क्या होगा? सम टाइम आप जहां कट करेंगे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ब्लीडिंग शो करना शुरू कर देते हैं, फ्लो ऑफ सैप शो करना शुरू करेंगे, या सम टाइम वहां पर वो मैस ऑफ टिश्यू बना लेते हैं, कैलस बन जाता है. तो वेरिएशन इन ग्रोथ रेट्स, सम टाइम वो ग्रोथ रेट्स चेंज कर लेते हैं. आपने एक साइड से लाइट ज्यादा प्लांट पर छोड़ी हुई है, तो प्लांट लाइट की तरफ मूव कर लेंगे. चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ सेल ड्यूरिंग मूवमेंट. तो अपनी मूवमेंट के दौरान हमेशा चेंज इन टर्जिडिटी करेंगे. जैसे टच मी नॉट प्लांट में आगे हम देखेंगे कि किस तरह से प्लांट है उसकी वो जो टर्गर प्रेशर है वो चेंज होता है, तो प्लांट अपनी रिस्पांस शो कर रहा होता है. द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस इज स्लो स्पीड ऑफ रिस्पांस शोन बाय प्लांट. तो प्लांट का जो बिहेवियर होगा वो एनिमल से मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस, प्रोमिनेंट डिफरेंस जो प्लांट और एनिमल के बिहेवियर में है वो ये है कि प्लांट का जो रिस्पांस होगा बड़ा स्लो होगा. आप एनिमल पर ऐसे अटैक करें, शेर को पत्थर मारेंगे तो वो एकदम दाड़ेगा, लेकिन प्लांट को पत्थर मारेंगे तो वो दाड़ेंगे नहीं, शायद वो 10 मिनट बाद वहां से फ्लो ऑफ सैप करना शुरू कर दें, ब्लीडिंग शुरू कर दें. सो कंट्रोल सिस्टम इन प्लांट. तो इन प्लांट कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ हार्मोनल कंट्रोल. तो प्लांट में फिर कोऑर्डिनेशन जो राब्ते का निजाम है वो हार्मोनल कंट्रोल ही है. वो कोई हार्मोन जो होती हैं वो लीव से पैदा होंगी, वो चली जाएंगी रूट में, और वहां पर वो ग्रेविट्रोपिज्म एक रिस्पांस जनरेट करवा रही होंगी. और कुछ जो ऑक्सीजन नीचे आएगा तो वो एपिकल डोमिनेंसी करवाएगा, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग करवाएगा. तो ये डिफरेंट हार्मोनल जो फंक्शन है इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है वो सिर्फ एक अल्लाह ने निजाम रखा हुआ. प्लांट के पास ब्रेन नहीं है, देयर इज नो ब्रेन इन प्लांट, दे शो ओनली हार्मोनल और केमिकल coordination. But one of the drawback of hormonal coordination is that the hormonal coordination is a slow process. Sometime यही short question में आ जाता है. Hormonal coordination in plant is a slow process. Explain it. Why it is a slow process? उसकी reason क्या है? कि there is a delay. Actually एक वक्फा आ जाता है, गैप आ जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है. लेकिन आप नर्वस कोऑर्डिनेशन में देखें, यहां से आपने एकदम, अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज से छू गया, फौरन आपने खींच दिया, इससे पहले कि मैसेज ब्रेन तक भी पहुंचे वो आपने रिस्पांस शो कर दिया, क्योंकि वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है. लेकिन अगर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होती तो आपका हाथ जल रहा है, यहां से फिर क्या होगा, यहां से वो पैगाम जाएगा, वो ब्रेन तक जाता, ब्रेन से वापस वो ग्लैंड्स को आता, ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज करना था, वो हार्मोन वापस हाथ में आना था, हाथ आपने पीछे खींचना था, तब तक तो हाथ जल चुका होता है. इसलिए हम कहते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट इज अ स्लो प्रोसेस बिकॉज देयर इज अ डिले. एक गैप आ जाता है किसके दरमियान? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन. चूंकि स्टिमुलस मिलेगा तो हार्मोन पैदा आना शुरू होती है, तो पैदा होते हुए उसको टाइम लग जाना है. फिर रिलीज ऑफ हार्मोन, हार्मोन कब रिलीज होगी? पैदा हुई, फिर उसका वो डिफ्यूजन के जरिए रिलीज होगी, तो जब रिलीज होगी तो उसके डिफ्यूजन के प्रोसेस में टाइम लग जाएगा. फिर वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए कहां तक पहुंचेगी? अराइवल एट टारगेट टिश्यू, जहां पर उस हार्मोन ने एक्ट करना है. तो उस टारगेट में पहुंचने में क्योंकि डिफ्यूजन इन्वॉल्व होगी और वो वेरी स्लो प्रोसेस है, तो इसमें भी टाइम लग जाना है.
और एक्शन एट टारगेट टिश्यू, फिर उस हार्मोन ने अपना काम करना है, माइटोसिस करवानी है, मियोसिस करवानी है, चेंज इन ग्रोथ रेट करवाना है, तो उसमें भी कई दिन लग सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट इज अ स्लो प्रोसेस बिकॉज देयर इज अ गैप, देयर इज अ डिले in production of hormone, release of hormone, arrival at target and action at target. So we can conclude that हम दो जस्ट सेंटेंस के अंदर हम ये बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कैसे हो सकती है। तो प्लांट शो कोऑर्डिनेशन, प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एप्रोप्रिएट वे, कि किस चीज को उन्होंने सूरज से दूर लेके जाना है, रूट हमेशा जमीन के अंदर लेके जानी है और स्टेम हमेशा बाहर निकालना है। इसको कहते हैं रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एप्रोप्रिएट वे, यानी किस तरफ किसी चीज की ग्रोथ ज्यादा करवानी है और किस तरफ ग्रोथ कम करवानी है। और सेकंड, कंट्रोलिंग द बॉडी फंक्शन थ्रू हार्मोन आर ग्रोथ रेगुलेटर, यानी अपने बॉडी फंक्शन को वो ग्रोथ रेगुलेटर, ये फ्लावरिंग हो रही है, कोई ना कोई हार्मोन इन्वॉल्व होगा इसमें, जीए इन्वॉल्व हो सकती है। इसी तरह से ये जो ब्रांचिंग बन रही है, ब्रांच रूट्स बन रही हैं, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, तो इसमें भी कोई हार्मोन होगी जो टैप रूट सिस्टम के बजाय वो एडवेंटेशियस रूट सिस्टम डेवलप करवा रही है। सो ये था हमारे पास के किस तरह से कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कुछ समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लांट से रिलेटेड कुछ अदर कंसेप्ट, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।